first of all, good morning, media friends, and my thanks to Pasigat Press Club for giving us such an opportunity to advocate our media brethren here. So, before starting, I want to introduce myself. Myself, Mr. Narmit Irosta Singh, President of All Magong Bango Youth Association, and with me is, in my right side, he is Mr. Ibrahim Takub, Assistant General Secretary of All Magong Bango Youth Association, and in my left, Mr. Lenjing Vijay, Convener of All Magong Bango Youth Association. So today, with the team All Magong Bango Youth Association is here to redress the grievances and sentiments of project affected families of Magong Bango in particular and Siang Belt as a whole. So, after a prolonged discussion with the project affected families, stakeholders, and like-minded people of Magong Bango, we the team Mambia has decided that we will protest and we are against the construction of Siang Upper Multi-Purpose Dam at Siang River. And accordingly, we have collected the genuine relevant documents of 4 villages of Magong Bango, which comprises of Pangkang, Riga, Sitang and Parong respectively. So, ये मेरा आवाज नहीं है, but going through the documentation and government decisions of the all Magong Bango villages, इसके तहत 90% of project affected families and stakeholders in Magong Bango stands as anti-dam. Only the remaining 10% is now in neutral mode. So in this regard, I request to our Honorable CM, Sri Pema Gandu sir, our Deputy Chief Minister, Chonamen sir, and my special request to our Honorable Minister Sri Ojingta Singh sir, Alo Libang, and Oni Panyang sir, that आपको ये सोचना चाहिए कि एनी लेजिस्लेचर को इलेक्ट करता है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और आपको भी उसी तरह एक्ट करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा. एंड सो एज ऑफ नाउ आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर दैट ऑल Magong Bango Youth Association will protest and are against the construction of 12,000 megawatt dam at Anasiang and will not allow any further more paper survey in our area. So, from now onwards, our state is clear that we will not entertain any type of consultative meetings in our Magong Bango area, and we will not welcome any government machineries, especially Siang Upper Multi-Purpose Development Committee at Magong Bango. So lastly, I feel and request Siang Indigenous Farmers Forum, Team All Adi Student Union, Adi Welfare Society, and All Adi Youth Association. Let's be united and let's fight together for our almighty Anasiang. With these invaluable words, I conclude my briefing. और सर, जैसे आपने कहा कि वहां पर जो आप लोगों के जो स्थानीय इफेक्टेड पीपल्स है वो 90% इस डैम को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अभी के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है श्री ओजिंता सिंह जी, जो हाल फिलहाल में मिनिस्टर के पद पर भी बैठा हुआ है, उन्होंने ओपनली कहा है कि वहां पर जो डैम एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों की संख्या 60% से है और जो नापसंद करते हैं उन लोगों की संख्या 40% बताया जा रहा है. सर, उस हिसाब से आप वहां का प्रेसिडेंट है, आप वहां का लोकल है, तो आपके लोकल हिसाब में सर आप हमें बताना चाहेंगे कि आप लोग कितने प्रतिशत लोग दाम को एक्सेप्ट करते होंगे और कितने लोग नकारते होंगे सर? सो इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि देयर इज लॉट्स ऑफ मिसकैलकुलेशन बाय आवर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ओजिंता सिंह सर. जैसे पहले भी मैंने कहा है कि आई हैव गॉट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट डिसीजन of my Magong Bango, which comprises of 4 villages. तो इसके तहत वजह से ये मेरा आवाज नहीं है. I'm talking within the evidence and proof of the government decisions of Magong Bango. तो इसके तहत not only project affected families but with stakeholders, ये सब मिला के
full अभी 90% is against the construction of Siang Upper Multipurpose Dam. सर जैसे कि ये जब दाम का रिलेटेड में उस दिन रिसेंटली एसडीएसयू प्रेसिडेंट ने भी प्रेस ब्रीफिंग दिया था, उसमें उन्होंने भी मेंशन किया था कि आउटसाइडर के बारे में, या आपका तरफ से ये आउटसाइडर कौन होता होगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? So there is, जैसे कल सीएम साहब भी आए थे पोलैंड पे एंड विद ऑल हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो हमारा ऑनरेबल जो मिनिस्टर है श्री ओजिंग सिंह सर भी हमेशा यही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं सोशल मीडिया में। तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एक डिस्क्लेमर में देना चाह रहा हूं कि अभी जैसे हम आज आए हैं इस मंच पे, हम अपने होश और आवाज में आए, आज भी हम किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके आज नहीं है यहाँ। वी आर हियर विद अवर फुल साउंड माइंड। तो इसके तहत अगर वो मिस स्टेटमेंट सोशल मीडिया में दे रहे हैं तो आउटसाइडर्स आर मिसलीडिंग, दे मस्ट प्रूव दैट कौन है आउटसाइडर्स। सो किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने पे आज हम नहीं है। वी आर हियर टू रिड्रेस द सेंटिमेंट्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ आवर पीपल एंड बीइंग एन आदि। और सर साथ ही साथ उस दिन जो कल का जब प्रेस मीडिया में जब पेमा खांडू ने बोला कि ये जब नेशनल इंटरेस्ट का बात होता है तब आप आदि नहीं है, आप अरुणाचली नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडियन है, उसके लिए ये सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दाम बहुत जरूरी है। इसका सर का जो कहना है उसका बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? द सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम को बार बार वो लोग वही कह रहे हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी के तहत बनने जा रहे हैं, देयर इज नेशनल इंटरेस्ट। सो मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ इसके ऊपर में। आई हैव कलेक्टेड सम स्टडीज, some articles. So जैसे ब्रह्मपुत्र जो नदी है, that is known as Yarlung Sampo in China. तो इसके स्टडी के तहत 2/3 of ब्रह्मपुत्र और सियांग रिवर इज इन चाइना, ओनली 1/3 इज इन इंडिया, known as ब्रह्मपुत्र। बट एक फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल स्टडी हुआ था इन द ईयर 2001 एंड 2002 में। तो उसके तहत यह पाया गया है कि ओनली 20% ऑफ वाटर कलेक्शन इज इन चाइना एंड 60% ऑफ वाटर कलेक्शन, जितना पानी है ब्रह्मपुत्र का, वो इंडिया में ही है, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, एंड 20% ऑल ओवर इंडिया। तो इसके तहत मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इफ दिस इज ए नेशनल इश्यू, नेशनल इंटरेस्ट अगर है, तो चाइना हैज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड 3 डैम्स। आपका जिक्सू डैम है वहां पे, जांगमू डैम है, उसका जायचा डैम, इसको एक वर्ड में जाना जाता है कि 3 गोर्जेस डैम एट यांगजे रिवर। सो अगर नेशनल इशू था, नेशनल इशू है, तो जितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अवर कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन अपील टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी होता है, आपका यूएन होता है, तो उसके तहत कुछ बोलना चाहिए लोगों को। और इसके और एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे 60,000 मेगावाट जो डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में इन चाइना नियर मेडोंग बॉर्डर, उसमें वो जो एरिया है जहां पे बन रहा है वो डैम, इट इज टोटली अर्थक्वेक प्रोन एरिया, एंड वहां का जो टेक्टोनिक प्लेट्स है दे आर वेरी सेंसिटिव। तो इंस्टेड ऑफ अपीलिंग द पीपल ऑफ सियांग बेल्ट कि हमको यहाँ डैम चाहिए, लेकिन उस हमारा जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से मैं यही अपील करना चाह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ दिस डैम इशू एंड ऑल, आपको पहले जानना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर वो डैम बन भी जाता है 60,000 मेगावाट और हमारा जो 12,500 का है, सो वो डैम ही एक सेंसिटिव जगह में बना हुआ है जहां पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, अगर वो टूट जाए तो, एंड वी कैन कंपेयर इंडिया विद चाइना। चाइना इज ए डैम मेकिंग मशीन, इज यू ऑल नो। वो तो अभी जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, 5-6 ईयर्स में बनवा देगा डैम को, बट दिस, और हमारे जो एक्सपर्ट्स है, जो एक्सपर्टीज बोल रहे हैं कि दिस मेगा डैम सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम विल बी बिल्ट ऑलमोस्ट इन 30 इयर्स। सो उस 30 इयर्स के बीच में अगर ये कुछ अर्थक्वेक आ गया वहां पे नियर मेडोंग बॉर्डर का जो डैम है मेगा डैम, तो कैसे हम रिटेलिएट करेंगे? सो हमारा जो कंसर्न, जितना भी रिलेटेड इश्यूज, हमारा स्टैंड यही है कि नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में सिर्फ आपका मेगा डैम नहीं आता है, आपका बॉर्डर रोड्स आता है, एंड वी कैन सी दैट हमारा जो मागो बांगो एरिया में पड़ता है, आपका दीते दी में तो मिगिंग रोड, एक बीआरटीएफ का रोड आया था बॉर्डर रोड्स के लिए,
सिंस 2019 नोटिफिकेशन आया है, आज तक कुछ काम नहीं है। ये सब इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस डैम इश्यूज एंड ऑल, आपको ये देखना चाहिए कि बॉर्डर रोड्स क्या है। बॉर्डर रोड्स होता है सैनिक के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन, गुड कम्युनिकेशन ऑफ पब्लिक एंड आर्म फोर्सेस। तो इसके तहत आप डैम को भी छोड़ के उस तरफ भी आपको परखना चाहिए। सर ये लास्टली आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये फीएफआर के बारे में, ऐसे मागोंग बांगो यूथ एसोसिएशन, आपका क्या स्टेटमेंट है? क्योंकि ये सब लोग का ये भी कहना था कि एटलीस्ट एक बार पीएफआर तो करने दीजिए, दाम का बाद में सोचेंगे, पहले पीएफआर करने दीजिए, उनका ये कहना था। तो आपकी तरफ से क्या स्टेटमेंट रहेगा पीएफआर को लेकर? पीएफआर के तहत तो जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये मेरा आवाज नहीं है। दिस द क्राई एंड सेंटिमेंट्स ऑफ माय पब्लिक ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ऑफ मागोंग बांगो। अगर वो जो 90% इज नॉट एक्सेप्टिंग, देन हु एम आई? मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि आई कैन ओवरटेक। आई एम द सीट ऑफ माय मागोंग बांगो एरिया, एंड जब तक पब्लिक ना नहीं कहेंगे, हम ना पे रहेंगे। और सर ये एक सवाल रहेगा, जो हमारे जो प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है श्री पेमा खांडू जी, उनके द्वारा वहां पर कल बोलन में जो मीटिंग थे उस पर कहा गया है कि अगर यहाँ के आम जनता, जो इफेक्टेड फैमिली या फिर जो इफेक्टेड पीपल्स लोग है, वहाँ के जो जनजाति, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आर्म फोर्स जो भेजा गया उसका ऊपर सवाल है। आर्म फोर्स जबरदस्ती भेजकर वहां पर उन लोगों को जबरदस्ती नहीं किया जाएगा यहाँ पर पेपर जो सर्वे करने के लिए, ऐसा भी सर कहा गया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो हमारा जो आदि भाले केबांग एबीके अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ श्री तादुंग लिबांग के ऊपर उन्होंने प्रोडाम बनने की कैंपेन करवाने की भी बात कही है। और साथ ही साथ प्रोडाम का लीडरशिप जो कि हमारा फॉर्मर मिनिस्टर श्री तमिल तागा जी है, उसको भी लेकर उन्होंने बात की है कि आप आदि बैंक पे जाना है, आदि लोगों को प्रोडम बनने का या फिर प्रो धर्म को एक्सेप्ट करने का आप लोगों को कैंपेन करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। वही टॉपिक को लेकर कल को अगर एबीके वाले या फिर प्रोडम का जो प्रेसिडेंट है, फॉर्मर मिनिस्टर का लीडरशिप में अगर आपके बांगो में या फिर आपके गांव में उन लोग कैंपेन करने आते हैं, तो आप एज अ बांगो प्रेसिडेंट या फिर एज अ बांगो स्टूडेंट या फिर बांगो एसोसिएशन आप लोग कौन से स्टेप लेना चाहेंगे अगर कल को इस तरह की समय या फिर इस तरह की स्थिति आता है आप लोगों के ऊपर? The Siang Upper Multipurpose Project Development Committee under the chairmanship of Sri Tamil Taga ji से मैं उससे भी यही अपील करना चाहता हूँ, नॉट ओनली डेवलपमेंट कमिटी द एबीके, कि एज ऑफ नाउ हमारा स्टैंड यही है कि विल नॉट वेलकम एंड विल नॉट एंडोर्स एंड एंटरटेन फर्दरमोर कंसल्टेटिव मीटिंग्स इन मागोंग बांगो। जब तक पब्लिक का स्टैंड है, वी आर अगेंस्ट। सर कल का एक प्रेस ब्रीफिंग पर जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो कल जो हमारा क्या अलो लेवोंग सर जो एक प्रेस ब्रीफिंग देते हैं, उसमें वो कहते हैं कि इंडिया टुडे चैनल पर कि जो 90% ऑफ वाटर जो चाइना से आता है, 10% जो अरुणाचल से आता है। जैसे कि आपने स्टेटमेंट दिया, थोड़ा बताया भी ये वाटर के बारे में, जो त्रिभुजरी से 10% सिर्फ अरुणाचल से आता है, उन्होंने ये कहा। और उनका कहना था कि अगर दाम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, वाटर ट्रीटीज नहीं होगा दो नेशन के बीच, तो वो लोग चाइना वाले वाटर को डाइवर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा सियांग है, जो ब्रह्मपुत्र कहलाता है, वो खाली हो जाएंगे, इसमें ये कोई पानी नहीं रहेगा, उनका ये कहना था। उसको लेकर सर थोड़ा सा फिर आप क्लियरिफाई कर दीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 90% ऑफ वाटर जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, 90% पानी जो रेनफॉल पानी से आता है इन एवरी सीजन। एंड आपको ये भी पता चलना चाहिए कि चाइना इज नॉट ट्राइंग टू डू ए वाटर वॉर विद अस, दे आर गोइंग टू डाइवर्ट द वाटर। जो 60,000 मेगावाट का जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है, एक्सपेरिमेंट नॉलेज, वो पानी को डाइवर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर वो पानी को डाइवर्ट करता भी है, तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि इंडिया में वन थर्ड का जो ब्रह्मपुत्र का पानी है, 1/3 है यहाँ पे हम लोग में, स्पेशली इन अरुणाचल। तो इसका आप देखिए, एक लॉजिकल बात है ये, आपका प्री मानसून को भी रेनफॉल होता है हमारा अरुणाचल में, और ऑब्वियसली मानसून में तो बारिश होता है। एंड मैं यही गारंटी देता हूं कि वो डैम अगर बनो या ना बनो, चाइना का ये सियांग नदी का भी सुखनेला नहीं है। एंड आपका मानसून टाइम में तो हमेशा फ्लड तो आता है हमारा अरुणाचल में भी, एंड गोइंग टू आसाम ऑल्सो। ये तो लॉजिकल बात है कि ये होता है।
इसलिए मैं यही सोचता हूँ देयर इज सम इल इंटेंशन, कुछ सेल्फिश मोटिव है द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कि हमेशा बार बार हमको बनाना है पर अब पब्लिक को कैसे समझाए और कैसा समझाना है। आपका जो डेवलपमेंट कमेटी अंदर का चेयरमैनशिप श्री तामियोता का, उसमें भी कुछ एक्सपर्टीज होना चाहिए। मान लो जियोलॉजिस्ट होना है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट होना है, अब बस्ती का कहां से उठा के अपॉइंट कर देगा, कुछ जिसको आप अपॉइंट कर रहे डे वाला लेम है, उसको कुछ ABC कुछ मालूम नहीं है डैम के बारे में।